This conference will now be recorded. देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबमिटिंग। आज थोड़ा सा डिले हो गया मेरी तरफ से भी सबमिटिंग। What is the meaning of submitting? Submitting means we can reduce number of hosts and increase number of network. Submitting का मतलब ये हो गया, अब बेसिक से बता रहा हूँ मैं। सपोज हम बात करते हैं क्लास सी, क्लास बी, क्लास सी। हमारे पास क्लास ए है एंड क्लास बी है एंड क्लास सी। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखो क्लास सी सबमिटिंग समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लास सी सबमिटिंग, सॉरी क्लास सी सबमिटिंग। तो क्लास सी सबमिटिंग में होता क्या है, देखो अगर हम बात करें क्लास सी के एक नेटवर्क के, तो हमें पता है 200.100.50.0/24 ये एक क्लासफुल नेटवर्क है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासफुल? क्लासफुल का मतलब है /24। अगर साइडर नोटेशन प्रीफिक्स लेंथ अगर 24 लिया है दैट मींस इट क्लासफुल, बिकॉज हमें पता है क्लास सी का जो सबनेट मास्क है वो डिफॉल्ट पास क्या होता है 0। और अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें 255 को, तो व्हाट वी आर गेटिंग 8 टाइम 1, 8 टाइम 1, again we are getting 8 times 1, and again we are getting 8 times 1, this is 255, and last of 8 will be 0. So that Cycle notation means 24 is prefix length. What is the prefix length? Prefix length is number of network bits. Number of network bits. And what is the meaning of number of network bits? One is the number, one is the network bit, and 0 is equal to host bit. 0 is equal to host bit. So 24 is the prefix length for class C, and subnet mask is 255.255.255.0. If we will convert this subnet mask to binary, so that we are getting 24 numbers for class A. So that is already we have write 24. So that number of network is equal to 1. We can say 1 is the number of network bit and 0 is equal to number of host bit. So 1 is the network bit and 0 is host bit. So that total number of network bits is equal to 24. If we will calculate total number of network bits, 8 plus 8 plus 8. So that summation of number of network bits is equal to 24. So that we have write here 24 for class C. Write 24 for class C. So that if we will calculate IP address for classful network for class C, so that how many number of IP address we are getting from class C. So we will see. So that we are going to remove this page. So now we are going to start. If we will take 24, the idea is 24. So we know that number of network bit formula. How to calculate network? Network formula is 2 की पावर n. नेटवर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, और होस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर h-2. Host is equal to 2 की power h-2, and we know that n is equal to network bit
and host h is equal to host bit. And h is equal to host bit. तो अगर हम क्लासफुल की बात करें, right now we are not going to submitting, just we are going to do classful, how to do calculate IP address. हम IP address कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लासफुल नेटवर्क में, और कैसे पता चला ये क्लासफुल है, because it is a 24 default prefix length. This is the default prefix length. That means it is a classful. So as per network formula, network is equal to 2 to the power n and host is equal to 2 to the power h minus 2. So that what is the process? How to calculate? Submitting का process क्या होता है? First हम क्या करते हैं? इस 24 को या submit path को हम convert करते हैं binary में. Submitting का भी यही concept है, और जब भी हम IP address या network calculate करते हैं तो process क्या होता है? सबसे पहले हम 24 को या submit path को binary bit में convert करेंगे. तो अगर इसका हम submit path देखें तो क्या होगा? सबमिट पास होगा 255.255.255.0 इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में. क्यों कन्वर्ट करने करेंगे? बिकॉज हमें क्या कैलकुलेट करना है? आईपी एड्रेस. चाहे सबमिटिंग करें या नॉर्मल आईपी कैलकुलेट करें फॉर क्लासफुल नेटवर्क, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कन्वर्ट करना इस डेसिमल को बाइनरी में. तो दैट हमें क्या मिलेगा? 8 टाइम 1 and again 8 times 1 and last of it is 0, so that 8 times 8 टाइम 1 फिर से आएगा और 0. जब भी हम आईपी एड्रेस कैलकुलेट करते हैं या सबमिटिंग करते हैं, ध्यान सुनना, नेटवर्क का पोर्शन है, ये नेटवर्क का पोर्शन है और ये होस्ट का पोर्शन. क्लास सी में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को, और लास्ट का जो ऑक्टेट है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो जो ये वाला ऑक्टेट है ये नेटवर्क का पोर्शन है, ये कांस्टेंट है, ये डिफॉल्ट है. जब हम आईपी एड्रेस कैलकुलेट करेंगे या सबमिटिंग करेंगे तो हमेशा हम होस्ट पोर्शन पे ही फोकस करेंगे, हमेशा हम होस्ट पोर्शन पे ही फोकस करेंगे. तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें होस्ट पोर्शन पे, तो अगर हम आईपी एड्रेस कैलकुलेट करें, अगर हम होस्ट कैलकुलेट करें, होस्ट में और आईपी, तो फार्मूला है 2 की पावर h माइनस 2. जब हम आईपी एड्रेस कैलकुलेट करते हैं सबमिटिंग करते हैं तो हमेशा होस्ट पोर्शन पे ही फोकस करते हैं, हमेशा होस्ट पोर्शन पे फोकस करते हैं. और होस्ट पोर्शन में कितने होस्ट बिट है? 0 इज इक्वल टू होस्ट बिट, 1 इज इक्वल टू नेटवर्क बिट. यहाँ तक तो पोर्शन कांस्टेंट है, हमेशा होस्ट पोर्शन पे ही फोकस करेंगे. ड्यूरिंग सबमिटिंग वी विल फोकस ओनली ऑन होस्ट पोर्शन. So last of it as a host portion for class C. So that what will happen? How many host bits we are getting? 8 bits. होस्ट बिट कितनी है? 8 बिट है. तो 2 की पावर 8 माइनस 2, दैट मीन्स 254 आईपी. तो बाय डिफॉल्ट के एक नेटवर्क में हमें 254 आईपी मिलेंगे. बाय डिफॉल्ट क्लास सी के नेटवर्क में क्लासफुल में हमें 254 आईपी मिलेंगे. हम कोई भी क्लास सी का एक नेटवर्क उठाते हैं हमें 254 आईपी एड्रेस मिलेंगे, चाहे वो 192.168.0/24 हो या जो अभी हमने नेटवर्क यहाँ से लिया. अब देखो यहाँ पर होगा कैसे, हाउ टू राइट आईपी एड्रेस. तो हमने जो नेटवर्क लिया था वो ये 200.150.0. तो आईपी कैसे लिखेंगे यहाँ पर? तो हमें पता है 200.150.0/24. दिस इज नेटवर्क आईडी. What is the first IP address? 200.150.1. That is the first IP. And 200.150.2. Second IP. ऐसे चलता जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा टिल कहाँ तक? 254 तक.
254/24. That is the last valid IP address. Last valid IP. And what we are getting after last valid IP address? Broadcast IP. Now 255 is a broadcast. That is a broadcast. And why this is a broadcast? ये broadcast क्यों है? Because host portion पे सारी bit क्या हो गई? 1 हो गई है. अगर 255 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, so that we are getting all bit is equal to 1, and that's why this is a broadcast. And network ID अगर हम सबको 0 में कन्वर्ट करेंगे, ये होस्ट पोर्शन पे सारी बिट क्या है? 0. जब all bit is 0 in host portion, so that IP address will become network ID. And जब होस्ट पोर्शन पे सारी बिट 1 हो जाएंगी, तो तुम क्या कहेंगे? ब्रॉडकास्ट आईडी कहेंगे. एंड बिटवीन नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? हमें मिलेगा वैलिड आईपी एड्रेस. वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से till 254. दैट इज वैलिड आईपी एड्रेस. एंड इसको हम यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज वैलिड आईपी एड्रेस. But 255 and 0 we cannot use as a valid IP address because this is a network 0 and 255 is a broadcast. तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें भी, ये तो अगर यहाँ पर हम 200.150.0 को इंटर करें एंड 255 बाय डिफॉल्ट सबमिट मार्क आ जाएगा क्लासिकल. अब अगर हम ओके करेंगे तो ये बताएगा कि ऑल बिट इज इक्वल टू 0 इन होस्ट पोर्शन, so that is a not valid combination for IP address. Please enter a valid combination of IP address and submit mark. देखो ओके करेंगे so that the combination of IP address and submit mark is invalid. All of the bits in the host address portion of the IP address set are 0. Please enter a valid combination of IP address and submit mark. Because 0 is a network ID, so that we cannot use network ID. And अगर हम यहाँ पर 1 यूज करेंगे लैन कार्ड से, so that we can use 1 because this is a valid IP address. And T254 also we can use because this is a valid IP address. But अगर हम 255 यूज करेंगे, so that again we are getting message from LAN card. And फोकस करना है, देखो होस्ट पोर्शन पे क्या है? यहाँ पर 1 बता रहा है. IP address are set to 1, मतलब होस्ट पोर्शन पे सारी बिट 1 है, so that we cannot enter this IP address. So that please enter valid combination of IP address and submit mark. So that यहाँ पर दो IP address हम यूज नहीं कर सकते. फर्स्ट नेटवर्क आईडी, सेकंड ब्रॉडकास्ट आईडी. बिटवीन नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी क्या मिलेगा? वी आर गेटिंग वैलिड IP address which is 254 IP. इसको हम यूज कर सकते हैं. So that is a normal scenario for submitting. That is not submitting, that is a simple calculating IP address for classful network. And what is the need of submitting? Already we have calculated IP address 254 for classful network. So what is the need of submitting? Submitting के requirement क्या है? तो अब हम बात करते हैं. जो क्लास C में जब भी हम IP address कैलकुलेट करेंगे तो हमें 254 IP address मिलेगा हमेशा. और नेटवर्क था 2 की पावर h-2. -2 का मतलब है एक हमने नेटवर्क को माइनस कर दिया और एक हमने ब्रॉडकास्ट को माइनस कर दिया. नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए फॉर्मूले से. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने क्या -2 फॉर्मूले में हमने दे रखा है, बिकॉज इन नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट एंड both are not valid IP address. So that already we have taken -2 in formula 2 to the power h-2. That is a way how to calculate IP address for submitting. क्या हम सबमिटिंग करें या हम कोई भी IP address कैलकुलेट करें. That is a simple formula. Now what is the requirement of submitting? देखो यहाँ पर एक ये सपोज एक ये कमरा है, एक ये रूम है, बड़ा सा रूम है, और यहाँ पे हमें 4 मतलब कोई 4 ऑब्जेक्ट है जिसको हमें यहाँ पर प्लेस करना है, पुट करना है.
we have to put 4 objects in particular room, so that और यहाँ पर जो ये 4 ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं रह सकते। ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं, ये 4 आदमी एक साथ नहीं रह सकते। तो दैट अब ये हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कमरा है, सिंगल रूम है, तो दैट क्या होगा, यहाँ पर ये 4 आदमी एक साथ नहीं रह सकते यहाँ पर। और इन 4 आदमी क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 रूम में। एक सिंगल हॉल था जिसको हमने 4 रूम में डिवाइड कर दिया। 4 रूम में डिवाइड करने के बाद जो 4 ऑब्जेक्ट थे, हमने 1 ऑब्जेक्ट एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो हमने सबके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है। मतलब एक बड़े से रूम को हमने छोटे-छोटे रूम में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग। हम एक क्लासफुल नेटवर्क को मल्टीपल सबनेट में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग। मतलब एक हमें 254 आईपी मिल रहा है, हम कुछ ऐसा करेंगे ये जो 254 आईपी एड्रेस है वो क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, या 3030 आईपी में हो जाए, या 62 आईपी में हो जाए, या 14 आईपी में हो जाए, कुछ ऐसा। जैसे इस रूम को हमने डिवाइड कर दिया फॉर 4 ऑब्जेक्ट, तो दैट इस 254 को भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड हो जाए। सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों थी रियल सिनेरियो में? बिकॉज देखो सबनेटिंग स्टार्ट हुआ था 1985 में। सबनेटिंग हैज बीन स्टार्ट सिंस 1985 एंड रिक्वायरमेंट क्या थी? सपोज ये हमारा एक राउटर है, एक ये राउटर है, और यहाँ पर हमने लिया है, सपोज ये यहाँ पर हमें चाहिए 30 आईपी, और इस सिनेरियो में हमें चाहिए 61 आईपी। और यहाँ पर भी हमें एक नेटवर्क चाहिए होगा, बिकॉज इन दोनों इंटरफेस पर हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पर 2 आईपी चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 नेटवर्क है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी एंड नेटवर्क सी। So that we have got 3 networks from this scenario. So what will happen, हम क्या करेंगे कि 3 क्लास, सपोज हमारे पास we don't have any scheme for submitting, हमारे पास सबमिटिंग नहीं है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम क्लास सी का एज पर रिक्वायरमेंट 30 है, 61 है और 2 आईपी है। दैट मीन्स हमें 3 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, 3 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, और वी डोंट हैव एनी सबमिटिंग स्कीम, सो दैट वी आर टेकिंग क्लास सी नेटवर्क। बिकॉज क्लास बी नहीं ले सकते, बिकॉज क्लास बी में हमें लॉट्स ऑफ आईपी एड्रेस मिलेंगे फ्रॉम क्लास बी, and as well as class A, we are getting lots of IP address from class A we are getting, so that we cannot take class B and class C for this scenario, so that we can take class C, right? तो class C जब हम लेंगे नेटवर्क यहाँ पर, सपोज हमने ले लिया 200.150.0/24, that is the first network. Second network we will take 51.0. नेटवर्क पोर्शन में अगर डिफरेंट नंबर है, 200 is same, 100 is the same, 50 and 51 both are different, so that network is equal to different, because first octet, second octet, third octet is a part of network, so that यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या लिया 51 and third network is 52। तो हमने ये 3 नेटवर्क यहाँ पर ले लिए। अब 3 नेटवर्क जो लिए हैं, हर नेटवर्क से हमें 254 आईपी मिलेगा, वो हमने देख लिया है। तो 254 आईपी यहाँ साइन कर देंगे, 254 आईपी यहाँ साइन कर देंगे, और 254 आईपी यहाँ साइन कर देंगे। कहने का मतलब 50.0 यहाँ पर ले लेंगे, 51.0 यहाँ पर ले लेंगे, एंड 52.0 हम यहाँ पर ले लेंगे। बट यहाँ पर इस सिनेरियो में होगा क्या, हमारा यहाँ काम तो ठीक है, बट यहाँ पर आईपी एड्रेस की वेस्टिंग हो रही है। लॉट्स ऑफ आईपी एड्रेस क्या हो रहा है, हैज बीन वेस्ट फ्रॉम दिस सिनेरियो, और हर आईपी के लिए हमें क्या करना होता है, पे करना होता है। हमें आईपी के लिए क्या करना होता है, पे करना होता है। सो दैट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 30 की और मिल रहा है 254, रिक्वायरमेंट 2 की और मिल रहा है 254, रिक्वायरमेंट 61 आईपी का मिल रहा है ऑल्सो 254। तो टोटल की हम बात करें तो हमें इतने आईपी मिल रहे हैं टोटल। सेवन 62 आईपी, एंड टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है, 30, 61 एंड 2।
टोटल रिक्वायरमेंट 93 की है और मिल कितने रहे 762। तो हमारे आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं। इसी वेस्टिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं सबनेटिंग। इसी वेस्टिंग को हम बचाने के लिए क्या करते हैं सबनेटिंग। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नेटवर्क से, अगर हम इसी नेटवर्क की बात करें, इसी नेटवर्क से हमको 254 आईपी मिल जाएंगे और रिक्वायरमेंट कितनी की टोटल रिक्वायरमेंट है 93 की। तो अगर हम कंपेयर करें 254 तो हमारा एक ही नेटवर्क से काम चल जाएगा, काम हमारा एक ही नेटवर्क से चल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये वाला नेटवर्क यहाँ पर असाइन कर दिया, मतलब 1 से लेकर 254 आईपी तक, तो जो नेटवर्क का आईपी हम यहाँ पर लेंगे इस सिनेरियो में, उस नेटवर्क का आईपी हम यहाँ पर नहीं ले सकते, बिकॉज क्या मिल जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, ओवरलैपिंग का मैसेज मिल जाएगा राउटर में। So that we have to take different network IP address for this scenario, and for this scenario again we will take different network, so that we cannot take same network IP address for two different router interface. So that is the problem. So that, और हमें पता है कि 254 IP address मिलेंगे from single network, requirement में 93 की total number of network IP address 93, बट हम ये काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर राउटर यूज हो रहा है और राउटर के दो डिफरेंट इंटरफेस पर हम सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। तो दैट हमारे पास एक ही सिनेरियो है कि हम क्या करें, ऐसा कुछ करें, एक नेटवर्क को 3 नेटवर्क में हम स्प्लिट करें, ब्रेक करें, और कम से कम एक नेटवर्क में हमें 61 आईपी चाहिए। वाई आई एम टेलिंग यू 61 आईपी, बिकॉज हाईएस्ट रिक्वायरमेंट देखो, इधर चाहिए 30, इधर चाहिए 2 और इधर चाहिए 61। तुम एज पर हाईएस्ट आईपी एड्रेस क्या करते हैं सबमिटिंग करते हैं, एज पर हाईएस्ट आईपी एड्रेस क्या करते हैं हम सबमिटिंग करते हैं। तो हाईएस्ट आईपी रिक्वायरमेंट है 61 और नेटवर्क कितने चाहिए 3। तो रिक्वायरमेंट हमें मिल गई 3 नेटवर्क या 61 आईपी। तो एज पर रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, वी कैन डू सबमिटिंग, एंड विच नेटवर्क वी आर गोइंग टू टेक 200, this network we are going to take 50.0. So now we are going to do subnetting. इस वजह से हम क्या करते हैं सबनेटिंग करते हैं। तो हमने ये नेटवर्क लिया था 50.0 और नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है 3 और कम से कम होस्ट चाहिए हमें एक नेटवर्क में 61, ये रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बताया था इस प्रीफिक्स लेंथ को हम नंबर ऑफ, या हम बात कर लें इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सबनेट मास्क। दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो इस सबनेट मास्क को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, इस सबनेट मास्क को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फॉर सबनेटिंग, तो क्या होगा 1 8 टाइम 1, जब इसकी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अगेन 8 टाइम 1, अगेन 8 टाइम 1 एंड 8 टाइम 0। ये नेटवर्क पोर्शन है, नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन। बाय डिफॉल्ट होस्ट पोर्शन पे कोई भी नेटवर्क बिट नहीं है। ये देखो ये होस्ट पोर्शन है, और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू whenever we will do submitting, so that we will focus only on host portion, so that last object is the host portion. होस्ट पोर्शन में एक बिट तो है होस्ट की है, बट कोई भी यहाँ पे नेटवर्क बिट नहीं है। और नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, और n इज इक्वल टू 0। अगर बाय डिफॉल्ट देखें तो 2 की पावर 0 1, नेटवर्क हमें मिल रहा है बाय डिफॉल्ट 1, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए यहाँ पर
एटलीस्ट 3 नेटवर्क। अब प्रोसेस क्या है, 3 नेटवर्क के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट क्या करेंगे, एक जीरो को हम यहाँ पे 1 कर देंगे, एक जीरो को यहाँ पर हम 1 कर देंगे, इसको हमने कर दिया 1। 1 करने के बाद फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, n इज इक्वल टू क्या हो गया 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई बिकॉज हमें 3 नेटवर्क चाहिए। तो अगेन हम एक जीरो को फिर से 1 में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने नेट होस्ट पोर्शन से 2 बिट 1 कर दिया है, मतलब वी हैव बोरोड 2 बिट फ्रॉम होस्ट पोर्शन। तो यहाँ पर एज पर फॉर्मूला 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, और रिक्वायरमेंट कितनी थी 3 की, और बिल कितने रहे 4, सो दैट हमारी जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होगी। तो अभी तक हमने क्या काम किया, यहाँ पर 8 टाइम 1 लिया था, अगेन 8 टाइम 1, 8 टाइम 1 एंड 2 बिट यहाँ पे बोरो किया था, और ये हो गया। तो नेटवर्क हमारे कितने मिले हमें, नेटवर्क मिल गया हमें 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब होस्ट की बात करते हैं। होस्ट पोर्शन के लिए कितने बिट बची, केवल 6 बिट, बिकॉज 2 बिट ऑलरेडी वी हैव बोरो, सो दैट रिमेनिंग बिट कितनी है होस्ट के लिए 6। तो होस्ट क्या हो गया 2 की पावर h माइनस 2, 6 बिट बची है, 2 की पावर 6 माइनस 2, 64 माइनस 2, 62। नेटवर्क मिल गया हमें 4 एंड होस्ट मिल गया, आईपी मिल गया हमें 62। फॉर ईच नेटवर्क, हर नेटवर्क में 62 आईपी मिलेंगे। एंड व्हाट विल बी साइडर नोटेशन, मतलब प्रीफिक्स कितना हो जाएगा, या सीआईडीआर कह लो अभी फॉर द टाइम भी। तो ये क्या है 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, बाय डिफॉल्ट कितना होता है 24, बट 2 बिट हमने यहाँ 1 कर दिया तो ये भी ऐड हो जाएगा। अब सीआईडीआर क्या हो जाएगा 26। तो आफ्टर सबमिटिंग सीआईडीआर विल बी चेंज, तो सीआईडीआर क्या हो गया 26, सीआईडीआर 26। अगर इसको, अब हमें देखो यहाँ पर 8 टाइम 1 मिला, इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल होगा 255। अगेन 8 टाइम 1 मिला, इसका डेसिमल 255। अगेन 8 टाइम 1 मिला, इसका डेसिमल 255। अगेन इसका डेसिमल क्या होगा 192। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 192। तो यहाँ पर सबनेट मास्क ऑलरेडी चेंज, क्या मिला सबनेट मास्क 255.255.255.192, दैट इज सबनेट मास्क। तो सीआईडीआर इज 26 एंड सबनेट मास्क इज लास्ट में बचेगा 192। ये प्रोसेस है सबनेट मास्क निकालने का। यहाँ तक जब एक बिट को 1 करेंगे तो ये होता है 128, जब एक बिट को 1 करते हैं 7 बिट 0 है, तो ये 128 प्लस सारे 0 होते हैं, इज इक्वल टू 128। जब 2 बिट को 1 करते हैं 2 बिट 1 करेंगे तो 128 प्लस 64, बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 192, जो भी निकाला है। जब 3 बिट को 1 करेंगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32, ये आ जाएगा 224। जब 4 बिट 1 करेंगे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, क्या आ जाएगा 240। जब 5 बिट 1 करेंगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, ये हो जाएगा 248। जब 6 बिट 1 करेंगे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, 252। एंड जब 7 बिट 1 करेंगे
बस यहाँ पर 1 2 और ऐड हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा 254। तो सारी बिट 1 करेंगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 255। तो दैट इज द वे हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो ऐसे हमने यहाँ पर क्या निकाला 192 निकाला। तो हमारा सबमिट मार्क्स क्या आ गया 255 255 255.192। ये सबमिट मार्क्स आ गया और CIDR इज 26। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है ब्लॉक साइज। अभी तक हमने यहाँ तक स्टेप किया था, लास्ट स्टेप है ब्लॉक साइज। व्हाट इज द ब्लॉक साइज? ब्लॉक साइज कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिड IP एड्रेस प्लस नेटवर्क ID प्लस ब्रॉडकास्ट ID। तो ब्लॉक साइज निकालने का जो फॉर्मूला है, जो भी यहाँ पे लास्ट में बचेगा, जो भी वैल्यू यहाँ लास्ट में आएगी, कुछ भी आएगी, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर क्लास C, उसको हम 256 से माइनस कर देंगे, इसको 192 को, क्या आएगा 64। दैट इज द ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 64। ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 64। तो ब्लॉक साइज 64 कैसे निकाला? जो भी वैल्यू लास्ट में बचेगी आफ्टर कन्वर्ट बाइनरी डेसिमल, we have got 192, and so that we will subtract from 256, and whatever value we have got after convert binary to decimal, so that this is a block size 64। अब इस ब्लॉक साइज को लिखेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट है, इस ब्लॉक साइज को लिखेंगे कैसे? हाउ टू राइट दिस ब्लॉक साइज? सिक्सटी फोर का ब्लॉक साइज है, 0 से स्टार्ट होगा और 63 तक जाएगा। मतलब जो पहला सबबिट हमें मिलेगा वो मिलेगा 200.100.50.0 से 200.100.50.63। ये नेटवर्क आईडी होगा और ये ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 63 पे खत्म हुआ है, स्टार्ट होगा 64 का, 64 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 127। केवल 64 को ऐड करते जाएंगे बस। थर्ड ब्लॉक साइज 128 टू 191, 64 का ऐड हो रहा है बस। फोर्थ ब्लॉक साइज 192 टू 255। ये 4 नेटवर्क निकाले थे और ये 4 नेटवर्क हमें मिल रहे हैं। तो क्या होगा, व्हाट वुड बी नेटवर्क 64 128 190। यहाँ पर अगर देखें तो क्या होगा 60 127 200 100 50.19। दिस इज ब्रॉडकास्ट। जो लेफ्ट में लिखा है वो नेटवर्क आईडी है, जो राइट में लिखा है वो ब्रॉडकास्ट आईडी है। और बिटवीन नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईडी क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग वैलिड आईपी एड्रेस व्हिच इज 1 to 162। तो कैसे लिखेंगे हम? अगर हम ये फर्स्ट नेटवर्क है, ये सेकेंड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क एंड फोर्थ नेटवर्क। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, सेकेंड ब्रॉडकास्ट, थर्ड ब्रॉडकास्ट, फोर्थ ब्रॉडकास्ट। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नेटवर्क लिखकर देखें तो व्हाट इज द फर्स्ट नेटवर्क? ये है फर्स्ट नेटवर्क /26। व्हाट इज द फर्स्ट? ये फर्स्ट नेटवर्क है। फर्स्ट आईपी क्या होगा 1, दैट इज द फर्स्ट वैलिड आईपी। सेकेंड आईपी is 50.2, third IP is 50.3, and fourth IP
4। कहाँ तक जाएगा ये? एज पर ब्लॉक साइज लास्ट वैलिड आईपी इज 62। लास्ट वैलिड IP. And after last valid IP, we are getting broadcast. That is the first broadcast. That is the BID, broadcast ID. And after broadcast ID क्या मिलेगा हमें? सेकेंड सबमिट स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड सबमिट स्टार्ट हो जाएगा। वो कहाँ से होगा? 200.150.64/26। That is the second सबमिट। इसमें भी 65 मिलेगा और ब्रॉडकास्ट क्या मिल जाएगा इसका? 127। और बिटवीन नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट क्या मिलेगा हमें? वैलिड आईपी। ऐसे लिख लेंगे इसको भी। तो ऐसे हमें देखो 4 नेटवर्क मिल रहे हैं। कौन कौन से नेटवर्क मिले हमें आफ्टर सबमिटिंग? 200.150.0/26, 200.150.64/26, 200.150.128/26 and 200.100.50.192/26। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ सबमिट है। ऐसे में सबमिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो हमने सिनेरियो लिया था हमने ये वाला। तो यहाँ पर हमें चाहिए था 30, यहाँ पर 2, यहाँ पर 61। तो 30 वालों को हम असाइन कर देंगे ये वाला नेटवर्क। यहाँ पर 2 चाहिए तो उसको यहाँ पर ये वाला असाइन कर देंगे और जहाँ पर 61 चाहिए था ये वाला नेटवर्क यहाँ पर असाइन कर देंगे, थर्ड नेटवर्क जो निकला था। अभी हमारे पास एक स्पेयर में बचा हुआ है विच इज 192। ये हमारे स्पेयर में बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इन फ्यूचर हम इसको यूज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की वेस्टिंग अभी भी हो रही है बट जितना पहले हो रही थी उतना नहीं हो रही है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लो।